So quadratic equations हमने already 10th standard पढ़ा हुआ है ना? Quadratic equations. So before I go to quadratic, something which you already know. Let's start with polynomials. ये तो तुम I think 8th, 9th, 10th से पढ़ते आ रहे होगे, है ना? The definition of polynomials and some facts about polynomials. Tell me what definition you know about polynomials. What is your definition of polynomials? Tell me. Equations that Anybody? have variables in it. Equations not necessarily, it can be expressions. Equations में वो equal to 0 करना पड़ता है. Fine, ठीक है, equations भी चलेगा. Which have some Variables. X की power is more than 1. x की power should be more than 1. फिर वो तो quadratic ही हो जाएगा ना. हाँ सर. Quadratic और वो. अभी हमें करेक्शन करना पड़ेंगे भाई, ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है. और सोचो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल? सर जिसमें multiple. सर जिसमें टू दी x की पावर 4 Multiple या उससे बड़ी variables होती है, raised to some power. 4 या उससे बड़ी होती है, जिसमें x की पावर 4 या उससे बड़ी होती है. अच्छा, ये सब कहाँ से आ रहा है? डेफिनेशंस तुम लोग पढ़ी हैं या फिर बना रहे हो अभी? What is polynomial in? वैसे तो देखो polynomial का मतलब होता है, poly means many and nominal मतलब number of terms. So many number of terms is a polynomial. Like a monomial is there, binomial is there. So there is a polynomial. But polynomial in a single variable, try to recall it यार, तुमने 9th पढ़ा है, 10th पढ़ा है. What is polynomial in x? मैं तो बताता हूँ. The best language here is mathematics. English हिंदी use मत करो. तुम अगर mathematically speaking, what is a polynomial? Any expression which looks like terms. not just गूगल में several है terms. सर ये जो बोल रहे हैं ये लोग. नहीं, गूगल वो इंग्लिश डिकोड कर रहा है. इस वक्त वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं दे पा रहा है, बिकॉज जिस पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, इट हैज सम स्पेसिफिक क्वालिटीज, स्पेसिफिक कंडीशंस, और वो ये है, इट हैज सेवरल टर्म्स. ठीक है, इनफैक्ट अगर 1-2 टर्म्स भी होंगी तो भी हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. नॉट टू वरी. सर आपका माइक. सर वॉल्यूम कम आ रहा है. I think इसका हेलो. हाँ सर अभी आ रहा है. यस सर. Okay. आवाज आ रहा है. All right. So any expression is a polynomial in x, a polynomial in single variable, if it looks like this. If it appears to be sum or difference of powers of x with some coefficients. This an minus 1, an minus 2 with suffix. n minus 1, minus 2 are suffixes. कोई powers नहीं है. They are simple coefficients. For example, p of x equals to x square minus x plus 1 is a polynomial in x. Before you say it is a quadratic, it is a polynomial. P of x equals to x minus 1 is a polynomial in x. P of x equals to x plus 1 by x is not a polynomial in x. Because if you say that it contains several terms, it contains many terms, and then it is a polynomial, you're wrong, because it also contains 2 terms. But this is not a polynomial. A polynomial nahi hai. Why it is not a polynomial? Because there's power negative. power Yes. negative. Because there are 2 conditions which say that powers, you say n must be a whole number. Power of x must be a whole number, right? So x plus 1 by x is not a polynomial, because in 1 by x, power of x is minus 1. It cannot be
a polynomial. ठीक है, ये पहली कंडीशन है. And for the time being, we'll keep all coefficients an minus 1, an minus 2 and so on to a naught. ये जो coefficients हैं, all these are real. I'm not saying this is a condition because यहाँ पे coefficients अगर imaginary भी हो गए, we do not bother about it. मतलब इसमें imaginary coefficients, complex coefficients भी आ सकते हैं, but फिलहाल अभी तक हम वहाँ पहुंचे नहीं हैं, तो हम केवल बात करेंगे real coefficients वाले polynomial की. So this condition is very important. This condition is extremely important. All powers must be whole numbers. है ना? Only then you can say that this given expression is a polynomial. For example, first और example लेते हैं. Tell me if px equals to x square minus x plus 1 whole upon x. Is it a polynomial? Is this a polynomial? Tell me. No, sir. No, sir. No, sir. No, Yes. sir. If you simplify, it No. will become x minus 1 again plus 1 by x. And since it is 1 by x, the power of x in this term is minus 1. It is not acceptable because all powers of x must be whole numbers. Got my point? तो ये definition I think तूने पढ़ी होगी. Who's this? Aditi, I think, है ना? Aditi double A. And AJ कौन है भाई? AJ कौन है? सर मैं हूँ. तो ये तू फिर से ज्वाइन कैसे कर रहा है? सर पता नहीं मेरा क्रैश हो गया था तो फिर से. Okay. तो ये रही definition of polynomial, है ना? You understood? तो मुझे बताओ कि तुमने ये definition नहीं पढ़ी थी 10th standard में? ये तो पढ़ा होगा? I hope. सर लेकिन कोएफिशिएंट फ्रैक्शंस भी तो हो सकते हैं. बेटा जब मैंने बोल दिया real, तो real में सब कुछ आ गया. अच्छा. ये real का mixed fruit juice है, सब कुछ mixed है इसमें. Rationals भी हैं, irrationals भी हैं, सब कुछ है. Except imaginary obviously. Imaginary numbers की बात नहीं कर रहे हैं. But real numbers में तो rational सब कुछ आ गया ना. All right, तो polynomials तुमने already पढ़ा हुआ था और अब उसको हमने revise कर लिया. Okay. Next point in after polynomials is, और ये भी तुमने पढ़ा हुआ है. This is degree of polynomials. What is degree of a polynomial? बताओ. Highest power. Highest power of x. Highest power in the Power of x. Highest power of x. Sure? अच्छा. चलो मैं इससे पहले उसको डिस्कस करें, मुझे क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो मुझे बताओ. First of all, is this a polynomial? Yes. Yes, sir. What is Yes, its sir. degree? Three. Degree is 3. Everybody saying same or any different answer? Because you are wrong. 4. मतलब 3 नहीं हुआ तो 4 बोल दिया है. सर Yes. आई थिंक कुछ तो ऐसा था, ऐड हो जाता है शायद से. हाँ ऐड होता है. अच्छा, ऐड हो जाता है. नहीं सर कुछ. सर 3 तो है. वही सर. 3 तो होगा. मैक्सिमम पावर होगा. होती है. सर मैक्स पावर Three होगा ना. ये तो 3 होगा. सर 3 तो होगा और क्या होगा? सर क्यूबिक है. Okay. Answer है degree is 3 if A is not equal to 0. बेटा ये मैथ्स है, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है कि हाँ चलो ठीक है आसपास होता ही, इन्फिनिटी यही तो है बगल में. ये मैथ्स है और मैथ्स में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक है ना तो वो गलत हो गया. मतलब 99.99% करेक्ट होने का भी मतलब नहीं है. यू आर रॉन्ग इफ यू आर 0.01% रॉन्ग. यू आर रॉन्ग. तो डिग्री इज 3 इफ A is not equal to 0. And you can understand that because अगर A 0 हो गया, if A equals to 0, it is no more a cubic polynomial, it becomes a linear polynomial. If B equals to 0 and C is not equal to 0, it's a 0 degree polynomial. So degree is definitely the highest power of x, for sure it is, but
the condition is the coefficient of this term must be non-zero. So what is degree of a polynomial? It is, you are correct, it is highest power of x, highest power of x, but the coefficient of this term, yeah, having a non-zero coefficient. Highest power of x having a non-zero coefficient. You getting me? So ax cube plus bx plus c is having a degree of 3, obviously, but if a is not equal to 0. Px equals to 2. Is this a polynomial? Is this a polynomial? Tell me. क्या ये polynomial है? Yes. Yes, sir. Yes, it is. 2x Because- raised to 0. हाँ पावर 0. यहाँ पे तुम x मैंने कहा ना ये x, ये power of x can be a whole number and 0 is a whole number. So yes, it is a polynomial with degree of this polynomial is 0. चलेगा. Interesting है discuss करना p of x equals to 0. What is px equal to 0? Is it a polynomial? Yes, it is also a polynomial. But what is the degree of this polynomial? 0. 0. 0 0 0 0 Cannot be determined. अरे क्या हो गया बच्चे, परेशान हो गए? कोई मम्मी को बुला रहा है? सर ये वही है शायद से। अभी मेरे अभी तो पापा इतना मम्मी difficult सबको बुलाता रहता है, सबको याद करता है ये। अभी इतना डिफिकल्ट तो हुआ भी नहीं है। सर कल को चाचा चाची भी बुलाएगा। दलेल मेहंदी। अच्छा बस दिलेर मेहंदी सर। okay. So p of x equals to 0, degree is simply not defined. Can you tell me the reason? क्यों हम बोल रहे हैं इसकी डिग्री 0 क्यों नहीं है? सर Why, x uh, कोई भी भी आंसर x की 0 ही degree आएगा। तो 1 हो x की जाएगा। कोई भी X डिग्री की आएगा multiply होगा तो वो 0 zero ही हो आएगा। जाएगा। अभी हमने डेफिनेशन क्या लिखी है? Highest power of x having a non-zero coefficient. Now look at px equal to 2. हम कह सकते हैं 2 into x power 0 और definitely x power 0 का जो coefficient है वो 2 है, which is non-zero. So यहाँ पर तुम जो power देख रहे हो maximum power वो 0 हो सकती है, degree is 0, fine. But यहाँ पर if you write 0 into x power 0, 0 into x power 0, obviously हम 0 नहीं बोल सकते degree, because यहाँ पे जो coefficient है वो 0 है. Because अगर तुम इसको 0 बोलते हो तो मैं बोल दूंगा ये तो 0 into x power 2 लिखा हुआ है, अब डिग्री इसकी 2 हो गई, मैं x power 3 लिख दूंगा, डिग्री इसकी 3 हो गई. So px equal to 0 is not a 0 degree polynomial. Degree of this polynomial is not defined. Not defined कहने के बाद अब not defined भी, you know, there are many types of not defined. Not defined होने के भी बहुत सारे तरीके हैं. उसमें the most convenient option you have is minus infinity. That's what they take. Mathematicians take px equal to 0, degree of px equal to 0 as minus infinity. This is the most convenient option you have. Why it is there and how it is there, इसको discuss करने की जरूरत नहीं है, because हमारा जो purpose है वो quadratic तक पहुंचना है. सर पावर तो होल नंबर होना चाहिए। सर माइनस इन्फिनिटी क्यों? This is the most convenient option. अब तुम्हें मैं चलो तो ऐसे समझाता हूँ कि अगर तुमने दो polynomials को multiply किया, ठीक है, मान लो p और q दो polynomials हैं, अगर तुम दो polynomials को multiply करते हो तो उसकी डिग्री क्या बनती है बताओ मुझे? If you are multiplying a quadratic and a cubic, the degree of the polynomial will be Degree of p, degree of q. plus degree of p into q is degree of p plus degree of q. If you want to check, देखो ना, अगर तुमने quadratic में multiply किया cubic को तो the highest power you will get is 5 x square into x cube है ना, उसके बाद जो भी terms आएंगे। So degree of Degree h 5. a h अच्छा क्या हो रहा है भाई? कहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं? क्या हो रहा है? आज कुछ प्रॉब्लम है क्या नेट की? सर ऐसे तो रोज होता है। सर कंप्यूटर में ग्लिच कर रहा था, सर्वर क्रैश हो रहा था, पता नहीं कुछ तो और। अच्छा किसका? ये जूम का? फिर तो सबके लिए होना चाहिए था ना, सर्वर क्रैश तो पता नहीं। अरे ऐप तो तुमने लोकली सेव की है ना, तो सबके लिए सेम प्रॉब्लम थोड़ी ना आ सकती है, मतलब जरूरी थोड़ी ना सबके लिए सेम आए.
कुछ लोकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डिवाइस में, देख लो। अगर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं। वापस हम रिकॉर्डिंग तो है ही, और इनकेस कुछ मिस होता है तो हम लोग फिर वापस बैठ के वापस पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कवर अप सेशंस का मेन पर्पस वही है। तो जो तुम कवर अप और डाउट सेशंस देख रहे हो, डाउट सेशंस तुम्हारे तुम्हारे सेपरेट लगाए गए हैं, तो वो डाउट सेशंस तो रहेंगे। उसके अलावा क्लास में या फिर क्लास के बाद भी डाउट सेशंस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल वही डाउट सेशंस है या फिर वही कवर अप्स है ना। बट वो वहां पर है, वो तो मतलब मैंडेटरी है, वहां पर रहना ही रहना है। वो डाउट सेशंस और कवर अप रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा जहां जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से लगाए जाएंगे। सो तुम पूछ रहे थे कि डिग्री ऑफ px इक्वल टू 0 नॉट डिफाइंड क्यों बोला जा रहा है। हाँ भाई, HE म्यूट कर ले यार। सो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 डिग्री 5 का पॉलिनोमियल देगा, और देख सकते हो कि ये रिजल्ट करेक्ट है। अब जरा इमेजिन करो कि मैंने px इक्वल टू 0 ले रखा है। 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू ऑब्वियसली 0 ही आने वाला है। अब तुम सोचो कि मैं, भाई तुमको पता है ना कि तो यहाँ पर अगर मैंने इसकी डिग्री, मान लो इसकी डिग्री को मैंने बोल दिया 0 डिग्री के जो पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0 जो है उसकी डिग्री मान लेते हैं इसकी डिग्री जो है वो x है। तो x, अब देखो उसको मल्टीप्लाई किया ना, ये रिलेशन देखो, डिग्री ऑफ p इंटू क्यू इक्वल टू डिग्री ऑफ p प्लस क्यू। सो x प्लस 3, और क्योंकि हमको फिर से px इक्वल टू 0 मिला है, शुड बी इक्वल टू x। x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x यू थिंक? x plus 3 should be equal to x, because जब तो दो पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी डिग्रीज ऐड हो जाती हैं। डिग्री ऑफ p इंटू क्यू इक्वल टू डिग्री ऑफ p प्लस क्यू। तो 0 इंटू एक्स क्यू प्लस 1, डिग्री ऑफ 0 को हमने x अज्यूम किया, तो डिग्री ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 3 है ऑब्वियसली, और जो रिजल्ट आ रहा है वो फिर से px इक्वल टू 0 है। तो डिग्री ऑफ 0 इज px infinity. इन्फिनिटी। यस, सो x should be not defined, बट सर उसमें ये भी कुछ माइनस समझा ही नहीं। अच्छा ये समझा क्या? सर पर x की तो नेगेटिव पावर नहीं लेते ना। नहीं नहीं, ये x की पावर नहीं है, ये कुछ और है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है। तुम्हें ये समझा क्या भाई? डिग्री ऑफ p इंटू क्यू इक्वल टू डिग्री ऑफ p हाँ प्लस सर, डिग्री ऑफ q। सर ये वो समझा? समझ गया। हाँ वो सर। समझ गया। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इंटू क्यूबिक इज डिग्री 5 पॉलिनोमियल, समझा? यस सर। ये भी यस समझा? सर। अब लेट, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक लिया था, यहाँ पे लिया मैंने px इक्वल टू 0। px इक्वल टू 0 इज अ पॉलिनोमियल, और उस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया मैंने क्यूबिक में। ये समझा? हाँ px सर। इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई किया क्यूबिक में, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये तुमको पता ही है। यस सर। यस 0 आ सर। गया। अब डिग्री कंपेयर करता है, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, और 2 प्लस 3 इक्वल टू डिग्री 5 आ गई। ठीक, अब 0 की डिग्री हमको पता नहीं, मान लो अभी, तो हमने इसको x अज्यूम कर लिया। लेट डिग्री ऑफ px इक्वल टू 0 बी x, इसको हमने x अज्यूम कर लिया। ओके। क्यूबिक की डिग्री तुमको पता ही है कि 3 होती है। हाँ सर। और फिर ये रूल जो है वो क्या बता रहा है कि अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो ये डिग्री जो है वो ऐड हो जाएगी। सो x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू रिजल्टिंग जो पॉलिनोमियल है वो फिर से px इक्वल टू 0 है, तो उसकी डिग्री फिर से x हो जाएगी। करेक्ट? सो x plus 3 यस सर। equals to x. x plus 3 should be equal to x, and this implies x is not defined. So there are many ways to prove कि जो degree of px equal to 0 है, it is not defined. And do not get into this simply because तुम्हारे सामने ये चीजें नहीं आने वाली। It is just a theoretical point. Correct yourself. जिनको ये लगता होगा अभी तक कि px equal to 0 is a constant, is a 0 degree polynomial. It is a constant for sure, but it is not a 0 degree polynomial. px equal to 2 is a 0 degree polynomial, ये चलेगा, ये 0 degree polynomial है, but px equal to 0 is not. तो just एक theoretical correction था, उसको ध्यान रखो। अब वो माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी ये मैटर नहीं करता अभी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ऑलराइट, अब डिग्री के बेसिस पर हमने कुछ पॉलिनोमियल्स की नेमिंग की है, वो भी जाननी जरूरी है। सो लेट्स राइट डिग्री एंड एसोसिएटेड पॉलिनोमियल। एंड ट्रस्ट में अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम नहीं करके आ सकता, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, एंड वी आर रिवाइजिंग फ्यू थिंग्स एंड वी आर आल्सो ट्राइंग टू करेक्ट फ्यू थिंग्स, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं थोड़ी बहुत चीजें, थोड़े मिसकॉन्सेप्ट जनरेट हो जाते हैं। सो आई वांट टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज जो भी तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और कुछ गलती की हुई है उसमें। सो डिग्री के बेसिस पे लेट्स क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स, एंड first is obviously degree 1 polynomial and we call it a linear polynomial, है ना? So a linear polynomial means degree 1 polynomial. Second obviously degree 2 polynomial, और हमारा पूरा फोकस जो है
वो यहाँ पे ही जाने वाला है. So all this is all about quadratic. Quadratic ही पढ़ने वाले हैं हम. So second degree polynomial is a quadratic polynomial. Third degree polynomial is called a cubic, and not more than 4. 4 तक जाते हैं. What is a 4-degree polynomial called? Biquadratic. Tetra. नहीं 4 को टेट्रा बोलते हैं ना यूजुअली. नहीं बोलते हैं, लेकिन अब जो टर्मिनोलॉजी है वो तो हमें फॉलो करनी पड़ेगी ना, जो लोगों ने बनाई है. अपने अपने आप नहीं बना सकते. So it is called biquadratic और क्वार्टिक. और ये मैं मेंशन इसलिए करता हूँ क्वार्टिक स्पेशली, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चंस में क्वार्टिक लिखा हुआ था एंड पीपल थॉट दैट देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, कि वो उसका इंटेंशन था क्वार्टिक लिखने का, उसने क्वार्टिक लिख दिया. बिकॉज देखो स्पेलिंग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डी और एक ए मिसिंग है. तो क्वार्टिक इज डिफरेंट. क्वार्टिक कॉलिंग क्वार्टिक ना. सर क्यों इतना तंग करते सर एग्जामिनर लोग, क्यों? अब भाई कहीं कुछ लिख दिया, इंग्लिश है यार तो जाननी चाहिए, और क्या है. अब उसने क्वार्टिक लिख दिया और लोगों ने सोचा कि नहीं क्वार्टिक था, तो आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा. तो ध्यान रखना कि क्वार्टिक मींस डिग्री 4 पॉलिनोमियल. अरे बैक विद द बैंग. HE030 था भाई अभी, ये तो है भी. क्या कर रहा है फिर, वापस ज्वाइन कर रहा है. पैरेलल यूनिवर्स है सर. सर कुछ वही लग रहा है मुझे. चार स्ट्रेंजर थिंग्स. एनीवेज, तो ये हमारा डिग्री एंड पॉलिनोमियल हो गया भाई. बोलो अब मुझे बताओ कि अब तक हमने जो थ्योरी पढ़ी उसमें किसी को कोई डाउट? हाँ, हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं. हमने अभी तक क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एंड इट इज सिंपली एनी एक्सप्रेशन व्हिच लुक्स लाइक an x power n, an minus 1 x power n minus 1, and so on to a constant of a naught, where all powers of x are whole numbers, is called a polynomial. For example, ये examples लिखे हुए हैं which are actually not polynomials. Polynomial क्या होते हैं बताइए? Linear, quadratic, cubic से polynomials हैं. Second, degree of a polynomial, the highest power of x, but this information is equally crucial. This coefficient must be non-zero. Coefficient non-zero होना जरूरी है. For example, this is a cubic polynomial only if a is not equal to 0. Px equal to is a polynomial of degree 0, and px equal to 0 with degree not defined. Then comes degree and naming convention of polynomials. Linear, quadratic, cubic सब तुमको पता ही था. For some of you, this word must be new. Quartic. Remember, quartic is a 4-degree polynomial. ठीक है, तो ये था हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. थर्ड पॉइंट फॉर द डे, और अगेन नथिंग न्यू. ये भी तुम्हें क्या? ये सब मैं नोट्स भेज दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है. बस समझते रहो, है ना. ओके. आई डोंट थिंक लिखने की जरूरत है. अगर तुम्हें लिखने की जरूरत लग रही है तो लिख लो. वैसे नोट्स अभी भेजने वाला हूं ग्रुप पे, तो कोई दिक्कत नहीं. थर्ड पॉइंट इज इक्वेशन एंड आइडेंटिटी. इक्वेशन एंड आइडेंटिटी. सर कोई वेटिंग रूम में? वेटिंग रूम में है. ये क्या कर रहा है यार, ये फिर से कैसे ज्वाइन कर रहा है? कहाँ है अपना HE030? सर कुछ ग्लिच हो रहा है. ठीक है, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी ग्लिच हो रहा है तो ठीक है. इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, टेल मी. ये भी कुछ नया नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से. हमको पता है कि व्हाट इज एन इक्वेशन, व्हाट इज एन आइडेंटिटी. टेल मी द डिफरेंस. टेल मी व्हाट इज एन इक्वेशन फर्स्ट. व्हाट इज एन इक्वेशन? Especially what is a polynomial equation? An expression Polynomial which equated contains to equal 0. to sign. Equal to sign, correct. Well, if you say px, if you take a polynomial and equate it to 0, it is a polynomial equation. For example, x square minus 3x plus 2 equal to 0 is a polynomial equation. In fact, it is a quadratic equation. है ना? Quadratic equation, because if we will solve this equation for x, you know, you can factorize this. Two solutions. And this will give you two solutions, 1 or 2. है ना? So this is an equation. A polynomial equation means when you equate a polynomial expression to 0, it is a polynomial equation.
What's important is, hello. What's important is fundamental theorem of algebra. You must know about it. मुझे लगता है सबको पता होगा already है, या हो सकता है नाम से ना पता हो, but ये जो point है बहुत ही basic है और तुमने already सुना होगा. What is fundamental theorem of algebra? पहले मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद discuss करते हैं इसके बारे में. Fundamental theorem of algebra says that number of roots in n degree polynomial equation. N degree polynomial equation HE. Number of roots in a n degree polynomial equation is n root. -1. exactly सर एनी n. रहेगा एन n minus 1 क्यों भाई? एक का रिड्यूस का कर 3 दिया. रहता है x स्क्वायर का 2 रहता अरे है हाँ हाँ -1. number of roots in a n degree polynomial equation is exactly n. ये हमेशा n ही रहता है. तो जिन लोगों को ये बात थोड़ी सी ट्विस्टेड लग रही हो, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर if you take, for example, if you take a second degree polynomial which is a quadratic, देखो डिग्री 2 है यहाँ पर, and you're getting 2 solutions, right? If you take a cubic, you will get 3 solutions, 3 roots. If you take a quadratic degree 4 polynomial equation, you will get 4 roots. And this is fundamental theorem of algebra. This is the basic theorem of algebra. But for your surprise, this theorem actually came later. I mean, hundreds of years later than the introduction of algebra. Introduction of algebra 1000 years back, maybe लोगों को algebra पता होगा, but about fundamental theorem of algebra, अभी 300-400 साल पहले ये fundamental theorem of algebra आई है. So why did this happen? मतलब algebra start होने के time पर why people were not aware of fundamental theorem of algebra? What do you think the reason is? Fundamental theorem of algebra is new comparing to algebra. हो सकता है उस टाइम पे लाइक नेगेटिव नंबर्स नहीं डिस्कवर किए होंगे या नेगेटिव नंबर्स डिस्कवर हो चुके थे. आई मीन ठीक है, नेगेटिव नंबर्स बाद में आए थे, पॉजिटिव के बाद सही है, बट अज्यूमिंग कि रियल नंबर्स के बारे में लोगों को पता था. ऑब्वियसली जो न्यू सेट ऑफ नंबर्स हैं, जो न्यूएस्ट सेट ऑफ नंबर्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स, वो इमेजिन नंबर्स. रीजन क्या था इस बात का कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 का, और सभी लोग कंफर्टेबल थे, सभी ने बोला कि हाँ भाई इसकी 2 रूट्स हैं, और बात बिल्कुल सही है, क्वाड्रेटिक की 2 रूट्स होनी चाहिए. बट 400 years back when somebody started solving this equation, x² + 1 = 0, this person has got no roots of the equation, because हम obviously x² + 1 = 0 को solve करने की कोशिश करेंगे, we'll get x² = -1. and obviously जब तक लोगों को इमेजिन नंबर्स के बारे में आइडिया नहीं था, they had to stop here, right? x² = -1 cannot be solved because हमको पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता. For them, DJ म्यूट कर ले यार. हाँ सर आपका वॉल्यूम कट जा रहा है. मेरा वॉल्यूम ब्रेक हो रहा है? नहीं सर. सर सही आ रहा है. नहीं सर सही आ रहा है. नहीं सर ठीक सही आ रहा है. x² = -1, x² = -1 की रूट्स हैं, वो हमें आज पता है, बट जब तक इमेजिन नंबर्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए तब तक लोगों को नहीं आइडिया था इस बात का. एंड दैट्स व्हाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा वाज इंट्रोड्यूस्ड मच लेटर, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि नहीं भाई इस इक्वेशन की भी रूट्स हैं, इस इक्वेशन की रूट्स क्या होती हैं, ये मैं अभी ये बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो ठीक है, जो कुछ लोगों को मेरे ख्याल से आइडिया होगा इस आयोटा के बारे में. इट्स कॉल्ड द बेसिक इमेजिनरी नंबर, यूनिट इमेजिनरी नंबर. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी एक चैप्टर अब स्टार्ट होगा, तुम पढ़ोगे इसके बारे में. बट ऑल यू नो
all you should know is that x square equals to -1 does have two roots. दो roots इसकी भी हैं, just like x square minus 3x plus 2 इसको हमने solve किया और इसकी भी दो roots हैं. ये दो roots real roots हैं और ये दो roots जो हैं plus i and minus i ये imaginary roots हैं और ये क्या होती हैं इस chapter में भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में explore करने वाले हैं. So this is fundamental theorem of algebra which says that number of roots in a n degree polynomial equation is exactly n. And this is something very basic. हम सबको पता है कि क्वाड्रेटिक की दो रूट्स होती हैं, क्यूबिक की तीन रूट्स होती हैं और बाई क्वाड्रेटिक की चार होती हैं एंड सो ऑन. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एन इक्वेशन. ये तो इक्वेशन के बारे में फैक्ट हो गया. व्हाट इज एन आइडेंटिटी? व्हाट इज एन आइडेंटिटी? टेल मी. Equation which is true for all values. An equation which is true for all values of x, for real as well as imaginary, all values of x is an identity, है ना? Is an identity. Give me an example. Give me an example. A plus b whole square. A plus b whole square. A plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square, I believe. ये होता है ना? Now this is called an identity. What is the reason? Why don't we call this an equation? Because you said कि भाई जो भी इक्वलिटी जहाँ लगी है it should be an equation. जहाँ भी इक्वलिटी लगी है it is an equation. हाँ? तो इसको हमने स्पेशल आइडेंटिटी क्यों बोल दिया? Why it is not called an equation only? Why it is an identity? सर क्योंकि ये a और b के सारे वैल्यूज के लिए होल्ड करता है. ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशन नहीं है, ये भी इक्वेशन है, सही बात है. बट हम इसको अगर कंपेयर करें पॉलिनोमियल इक्वेशन से, हम इसको कंपेयर करें इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से, और अगर हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, लेट्स टेक वन वेरिएबल ओनली, मतलब मैं चलो इसकी बात कर लेता हूँ, x plus 1 whole square equals to x square plus 2x plus 1, because this looks like a polynomial equation, है ना? in single variable, दो वेरिएबल नहीं लेते हैं. Now tell me, does this look like a polynomial equation? क्या ये polynomial equation है? हाँ. है. इसकी डिग्री क्या है? डिग्री क्या है इस polynomial equation की? 2. थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोल रही है कि जो डिग्री होगी उतनी रूट्स होनी चाहिए, करेक्ट? तो बताओ मुझे इस इक्वेशन की कितनी रूट्स होनी चाहिए? 2. बट है कितनी? एक है. अच्छा, इसको केवल x की एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? -1. नहीं सर, सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे ना. अरे भाई ये आइडेंटिटी है. x plus 1 whole square is always x square plus 2x plus 1. सर x इनफाइनाइट. plus 1 wholes, yes. अगर मैं पूछूं यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितनी है, तो आंसर होगा नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई. चलो हम अभी इमेजिनरी नंबर्स नहीं ले रहे हैं, हम रियल नंबर्स तक रखते हैं. एवरी रियल वैल्यू विल सेटिस्फाई. सी, हमने x को 1 रख दिया, 2 स्क्वायर इज 4, राइट हैंड साइड में 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 plus 1 is 4, 4 equals to 4. x को -1 रख दिया, 0, 1 minus 2 plus 1 is 0. x को तुमने 0 रख दिया, तो 1 equals to 1. Every value of x will satisfy, because what we did, we just multiplied x plus 1 into x plus 1 and we got right hand side. So this is an identity. This is not a polynomial equation. Where are you wrong? Tell me. हम गलत कहाँ हो रहे हैं? Because fundamental theorem of algebra is not थ्योरम wrong. नहीं लाइक ये हो पा रहा है. अच्छा, थ्योरम ही गलत हो गई. वाह. नहीं. हम तो नहीं, ये थ्योरम थ्योरम सेटिस्फाई इस पे लग नहीं रहा है. थ्योरम ये इक्वेशन वो थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है. तो भाई अगर थ्योरम करेक्ट है तो फिर थ्योरम एप्लीकेबल होनी चाहिए ना. तो हम रॉन्ग कहाँ? हम रॉन्ग है. थ्योरम तो रॉन्ग नहीं हो सकती. एक्सेप्शन होगा. तो सर नहीं, मैथ्स में एक्सेप्शंस नहीं होते ना. तो ये मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है. एक्सेप्शन सिर्फ केमिस्ट्री में होती है. सर मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है. हाँ, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है. बिल्कुल सही. This is not a polynomial equation. सर अगर हमें when you said, listen, से निकाले तभी भी नहीं आएगा. किस तरीके से? वो जो ये रहता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का, -b + -1. नहीं, फॉर्मूला भी लगेगा नहीं. मेरी बात सुनो.
जिस मोमेंट पे तुमने इसको बोला, the moment you said it is a polynomial, it was wrong. The statement was wrong because it is not a polynomial equation. Because तुम देखो, तुमने कहा कि इसकी डिग्री 2 है, राइट? तुम कह रहे थे कि डिग्री 2 का पॉलिनोमियल इक्वेशन है. अगर मैं लिखा है x plus 1 equal to 0, टेल मी क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? बिल्कुल है. इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है. What if I add x square both sides? अब मैंने x square both sides ऐड कर दिया. It will put no harm to this equation. Obviously हम x square both sides ऐड कर सकते हैं. Will you say कि हमने इसकी डिग्री इंक्रीज कर दिया, इसकी डिग्री अब 2 बन गई? क्या इस जो नो सर, x square तो कैंसिल हो रहा है ना यार? हाँ सर. जो इफेक्टिवली तुम देखोगे कैंसिल नहीं कर रहे हो तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 minus 1 है, राइट? अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे, the coefficient of x square is 0. तो ऑब्वियसली डिग्री 2 नहीं बोली जाएगी. डिग्री अभी सर वॉइस नहीं आ ब्रेक हो रही है. वॉइस ब्रेक हो रही है. नहीं सर क्लियर नहीं सर क्लियर है. क्लियर है. रिसेप्शन में प्रॉब्लम होगा. उसको रीजॉइन करो मीटिंग को, ठीक है? फिर से आओ. सो ये बात ध्यान रखना कि जब तुम डिग्री कैलकुलेट करते हो, व्हेन यू कैलकुलेट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, यू हैव सिंप्लीफाइड, यू हैव shifted all terms to one side of the polynomial of the equation, and then you try to calculate the power of this the highest power of x with a non-zero coefficient. तो यहाँ पे तुमने गलती क्या की? तुमने जल्दी में बोल दिया कि इसकी डिग्री 2 है. इसकी डिग्री 2 नहीं है. इसकी डिग्री क्या है वो जानने के लिए, और उसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं. वेट, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. So how should we simplify this? Obviously x plus 1 whole square को यहाँ भी ओपन करना पड़ेगा. x square plus 2x plus 1 equals to x square plus 2x plus 1. In a way it seems very funny कि क्या लिखा हुआ है तो equal to है ही, but फिर भी तुम्हें केवल एक्सप्लेन करने के लिए, what is the coefficient? What is the coefficient, final coefficient of x square? Not defined है, not defined. Yes. Because आंसर 0 है तो फिर 0 का not defined. Yes, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब तुम सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे, each term will get cancelled, and that is why it is called an identity, because ये eventually 0 equal to 0 है. 0 equals to 0 is an identity. ये वही लिखा हुआ है. It is not a polynomial equation of degree 2. It is a polynomial equation of degree not defined, if you are calling it a polynomial equation. Otherwise you can say it is an identity. ये एक identity है, because it is true. आपने x plus 1 whole square bracket को expand कर दिया और RHS को वैसे का वैसा रहने दिया. Yes. RHS को मैंने शिफ्ट कर दिया. और यही एक और रीजन है लाइक 0 का माइनस इंफिनिटी लेने का, क्योंकि इधर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है. बट तो फिर इंफिनिटी होना चाहिए था ना. हाँ सर, वो माइनस का क्या रोल? माइनस का रोल अभी मैं तो नहीं रख सकता, सॉरी. उसके लिए तुम्हें रिंग्स एंड फील्ड्स और अलजेब्रा में वहां जाना पड़ेगा, जहाँ पे अभी तुम नियर फ्यूचर में तो नहीं जाने वाले हो. तो फिलहाल उसको छोड़ दो, उसको वहीं छोड़ दो. बस ये जान लो कि वो नॉट माइनस इंफिनिटी मत बोलो, तुम नॉट डिफाइंड ही बोलो उसको, ठीक है? बट अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इसको समझना कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन और एक आइडेंटिटी का डिफरेंस क्या है. सबसे पहला डिफरेंस, चलो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इनको सेपरेट लिखते हैं और देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में. तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन, और यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं आइडेंटिटी. सबसे पहला डिफरेंस जो तुमने नोटिस किया होगा वो ये होगा कि जो नंबर ऑफ रूट्स हैं, जो नंबर ऑफ रूट्स हैं इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, वो फिक्स्ड हैं. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू n, अज्यूमिंग ये n डिग्री का इक्वेशन है, ये n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन. ये तुमने लिखा ही था, नंबर ऑफ रूट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट हियर, कंपेयरिंग टू द फर्स्ट पॉइंट हियर इन इक्वेशंस, आइडेंटिटी में नंबर ऑफ रूट्स कितनी है तुमने अभी देखा? इनफाइनाइट. Yes, we have infinite roots. In fact, अगर तुम इतना लिख दोगे कि number of roots, अच्छा यहाँ पे डिग्री तो वैसे डिफाइन नहीं है, बट जैसे तुम कंफ्यूज हुए कि ये डिग्री 2 का है, तो it appears to be, it is not n degree actually, appears to be degree n. ये मैं क्या लिख रहा हूँ? ये मैं तुम्हें वही लिख रहा हूँ जो तुम, जहां पे तुम कंफ्यूज हुए थे कि अगर ये
अगर ये लग रहा है कि डिग्री n का पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर ये आइडेंटिटी है, ये डिग्री n नहीं है, जैसे तुम्हें लगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और तुम बाद में पता लगा कि नहीं भाई, सभी टर्म्स को सिंपलीफाई करने के बाद ये तो एक आइडेंटिटी है. So what appears to be a n degree polynomial equation, if it is actually an identity, the number of roots will be not defined. Number of roots is not defined, or simply you can say that number of roots, अगर हम n के कंपैरिजन में कुछ बोलना चाहते हैं, is strictly greater than n. अगर तुम इतना बोल दो कि किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की रूट्स जो तुम्हें n डिग्री की दिखाई दे रही है, उसकी रूट्स n से ज्यादा है. फॉर एग्जांपल मैं बोला कि एक क्वाड्रेटिक है और उसकी रूट्स जो है मोर देन 2 है. इट हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. इट इज नो मोर अ क्वाड्रेटिक. इट शुड बी एन आइडेंटिटी. इट शुड बी एन आइडेंटिटी. ये बात समझ में आ रही है? जैसे मैं देखो, मैं बताता हूँ. जैसे मान लो हमने लिखा सपोज यही है कि मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट. If ax plus b equal to 0 is an identity, tell me what should happen. अगर ये एक आइडेंटिटी है तो क्या होना चाहिए? If ax plus b equals to 0 is an identity. If it is an identity, it should be identity in x, obviously identity in x. It should be satisfied by every value of x. तुम x को 0 रखो, x को 1 रखो, x को 2 रखो, x को 5 रखो, कुछ भी रखो, ये सेटिस्फाई होना चाहिए. करेक्ट? ये इंप्लाई करेगा कि b और a भी चेंज कर रहे हैं. नहीं, b और a कांस्टेंट है. b और a कांस्टेंट है. b और a चेंज नहीं कर सकते. b और a चेंज नहीं कर सकते. अब यहीं पे तुम डिफरेंस समझने की कोशिश करो. अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होती तो हम कंडीशन बोलते a should not be equal to 0 बिकॉज हमें डिग्री इसकी 1 रखनी है. if it is a linear polynomial. अगर a 0 नहीं होता then x would have been minus b by a, यानी कि केवल एक सोल्यूशन मिलता हमको, x equals to minus b by a. और एक मिलना भी चाहिए था बिकॉज अगर इसकी डिग्री 1 है, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी एक ही रूट होनी चाहिए. बट इफ इट इज एन आइडेंटिटी, अगर ये आइडेंटिटी है ax plus b equal to 0, अगर आइडेंटिटी हो जाती है तो फिर सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे. फॉर एग्जांपल 0 सेटिस्फाई करेगा. देखो तुम x को 0 रखो, b equal to 0 आ जाएगा. अगर b equals to 0 आ गया तो अभी क्या बन गया? ax equal to 0 बन गया. अब तुम x को 1 रख दो, x को 1 रख दोगे तो a equal to 0 भी आ जाएगा. तुमने कुछ नोटिस किया कि अगर ये एक आइडेंटिटी बन गई तो इसके सारे कोएफिशिएंट्स को 0 होना पड़ेगा. ये चीज तुमने ऊपर भी नोटिस की होगी. जस्ट जब हमने इस इक्वेशन की सभी टर्म्स को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में, ऑल कोएफिशिएंट्स, चाहे वो x स्क्वायर का हो, चाहे वो x का हो या फिर कांस्टेंट टर्म हो, ऑल कोएफिशिएंट्स बिकम 0. अभी हम डिग्री नॉट डिफाइंड बता पाएंगे. यस, डिग्री इज अगेन नॉट डिफाइंड. So what happens in an identity, अगर मान लो मैंने बोला कि ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic. तो हम बोलेंगे कि a should not be equal to 0. और अगर हम बोलेंगे a not equal to 0 तो नंबर ऑफ रूट्स होंगी वो होंगी 2. 2 रूट्स होनी चाहिए. बट if ax square plus bx plus c equal to 0 is an identity, अगर ये आइडेंटिटी बन गई तो क्या a not equal to 0 होना चाहिए? क्योंकि अगर a not equal to 0 हो गया तो फिर इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, और इसकी डिग्री अगर 2 हो गई तो फिर तो इसके 2 ही रूट्स आएंगी ना. बट नंबर ऑफ रूट्स मस्ट बी अनडिफाइंड. नंबर ऑफ रूट्स मस्ट बी इन्फिनिटी, क्योंकि सारी वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए. इट इज एन आइडेंटिटी. तो क्या होना चाहिए? a equals to 0. Not only a equals to 0, b is also equal to 0 and c is also equal to 0. ठीक है? तो this is the second difference between an identity and an equation. क्या difference है ये? यहाँ पे वापस आते हैं. ये second difference ये है कि यहाँ पर an is never equal to 0. an means what? The coefficient of degree term. हाईएस्ट पावर जहां पे हम बता रहे हैं कि यहाँ भी n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए. बट ऑन द अदर हैंड यहां पर क्या होना चाहिए? ऑल कोएफिशिएंट्स इन एन आइडेंटिटी
all coefficients are zeros. सर लेकिन अगर ऐसे एक आइडेंटिटी ले ली x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो फिर वो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए भी हो जाएगा ना सर? फिर तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हाँ सर। अभी क्या सर तो उसमें ए और बी 1 2 कोई भी नंबर हो सकता है, तो फिर ए और बी हाँ, तो तो फिर कांस्टेंट्स है ना यार। तुम्हारा वेरिएबल क्या है, x या ए बी? तुम वेरिएबल किसको ले रहे हो? एक्स को। x को ले रहे हो ना, तो फिर ए बी कुछ भी कैसे हो सकता है? ए बी तो कांस्टेंट है ना। हाँ सर, जैसे 1 हो गया ए और बी 2 हो गया। तुम ए बी को कांस्टेंट रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, पहले बताओ। हाँ सर, रख रहा हूँ। तो फिर ए और बी कांस्टेंट है तो x में आइडेंटिटी है। देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लो, और राइट हैंड साइड में सेम लिखा हुआ है। फाइनली x स्क्वायर इंटू 0, x इंटू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ओके सर। हाँ सर। तुम अगर a और b को इधर चेंज करोगे तो वही चेंज यहाँ भी तो आएंगे, इवेंचुअली चेंज तो सेम ही आने वाला है। इट इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये दो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ये दो चीजें तो पता होनी चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। हालांकि इसके क्वेश्चंस बहुत पहले आए थे, आजकल तो नहीं आते हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक पॉइंट है, लेकिन तुम्हें ये बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड एन आइडेंटिटी व्हिच अपीयर्स टू बी n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो लगती है नहीं और एक्चुअली नहीं हो सकती, बिकॉज किसी भी आइडेंटिटी की डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। बट अगर ऐसा लग रहा है, तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये सेकंड डिग्री है, ये थर्ड डिग्री है, वो n डिग्री है, लेकिन एक्चुअली वो आइडेंटिटी है, तो फिर नंबर ऑफ रूट्स नॉट डिफाइंड या फिर नंबर ऑफ रूट्स सिंपली ग्रेटर देन n एंड ऑल कोएफिशिएंट्स आर जीरोस। सारे के सारे कोएफिशिएंट इस आइडेंटिटी के जीरो होंगे, है ना। तो ये तुम नोट कर सकते हो, ये पार्ट तुम नोट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये जो बनाई मैंने कंपैरिजन टेबल, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स में भेजने वाला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें अगर सर थोड़ा सा स्वाइप अप कर दोगे? हाँ मैं अब कर रहा हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के बाद यहाँ से जो मैंने स्टार्ट किया है, इसमें जिन लोगों को डाउट्स हो वो डिस्कस करें, क्योंकि उसके बाद ही क्वेश्चन करने का मतलब है। आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच का कंफ्यूजन देखो तो पहले नहीं था, क्योंकि तुम्हें उसका नॉलेज ही नहीं थी। कंफ्यूजन तभी आता है when you learn something, right? No study no confusion बोलते हैं ना सर। तो अब तुमने पढ़ा है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जनरेट हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो मुझे बताओ उस बारे में और हम उसको डिस्कस करते हैं। बताओ, किसी को भी कोई डाउट हो तो उसको डिस्कस करो। सर ये आइडेंटिटी लाइक हमने डिस्कवर आई थिंक और बनाई कैसे, लाइक क्यों ऐसा किया हमने? मतलब तुम कह रहे हो कि मैंने x+1 मल्टीप्लाई क्यों किया? लाइक हमने ऐसे इक्वेट कर दिया 0 एंड देन लाइक कोएफिशिएंट 0 है तो आइडेंटिटी है। ये क्यों किया? मतलब देखो, पहली बात तो ये इसलिए किया बिकॉज आइडेंटिटीज जो हैं वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं है, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो समझने के लिए हमने बताया कि सारे कोएफिशिएंट 0 होते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे एक क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन था जब कोई बोलता कि भाई तुमने बोला है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में ये बोला जाता है कि एक n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन की n रूट से हो सकती है, n से ज्यादा नहीं हो सकती है, n से कम नहीं हो सकती है, एग्जैक्टली n होनी चाहिए। तो उस पॉइंट पर यहाँ पर लोगों में डाउट आ जाता ना कि भाई हम तो देख रहे हैं एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल, यहाँ पे तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज x स्क्वायर। यहाँ पर हमको इनफाइनाइट रूट्स क्यों मिल रही हैं? यहाँ पर x की सारी वैल्यू सेटिस्फाई कैसे कर रही है? इसका मतलब तुम्हारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा रॉन्ग है। इस वजह से हमने आइडेंटिटी के बारे में बताया कि नहीं भाई, अभी तुम इसको ऐसे मत देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है और उसके बाद बताना है कि कोएफिशिएंट्स क्या है, उसके बाद बताना है कि उसकी डिग्री क्या है। और ये काम ने किया और नोटिस किया कि नहीं भाई, इसकी डिग्री 2 नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा 0 इक्वल टू 0 बन गया। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ अनडिफाइंड डिग्री, ये कह सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि इट इज नॉट एक्चुअली अ पॉलिनोमियल, इट इज एक्चुअली एन आइडेंटिटी बिकॉज़ 0 इक्वल टू 0 इज ऑलवेज करेक्ट। तो रीजन क्या था कि हमने इस चीज को नोटिस किया और इस चीज पर हम अब एम्फसाइज कर रहे हैं कि ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ अ
ऑफ एन आइडेंटिटी आर जीरोस, क्योंकि अगर ये हमने नहीं बोला होता, नोटिस नहीं किया होता, तो ये कंफ्यूजन रहता हमारा, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा फिर हमको रॉन्ग लगती है कि ये चीज करेक्ट नहीं है ना। और इसका एप्लीकेशन जेई में क्या है वो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सर आप हाँ उसको लाइक कॉन्ट्रेरी करके प्रूव कर सकते हैं एक बार कॉन्ट्रडिक्शन से, कि लाइक एक चीज को अज्यूम करके आइडेंटिटी एंड फिर बताना हाँ, क्या क्यों नहीं, कॉन्ट्रैक्शंस तो प्रूव हो ही रहा है ना। जहां मैंने बोला, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन से प्रूव नहीं हो रहा। अगर ये a नॉट इक्वल टू 0 होता, अगर मान लो a 0 नहीं होता, तो हम ऊपर वाली सिचुएशन में आए थे ना, a नॉट इक्वल टू 0, नंबर ऑफ रूट्स 2 हो जाती। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होते हैं, हमको पता है, इनफाइनाइट रूट्स हो ही नहीं सकती। अगर मान लो a 0 होता बट b नॉट इक्वल टू 0 होता, b 0 नहीं होता, इट वुड हैव बिकम अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर की एक ही रूट होती है, इनफाइनाइट कैसे होती। और मान लो कि a भी 0 होता, b भी 0 होता, बट c 0 नहीं होता। अब अगर a भी 0 है, b भी 0 है, बट c 0 नहीं है, इट वुड हैव बिकम अ कॉन्ट्रडिक्शन। एक भी रूट नहीं होती इसकी, नो रूट्स, बट इसकी इनफाइनाइट रूट्स है। तो क्लियरली बाय कॉन्ट्रडिक्शन यू कैन इजीली प्रूव कि a b c 0 होने चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक और प्रूफ दिखाता हूँ, तुम्हें और सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन असली सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तुम जब इसको यूज करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। सपोज हम प्रूफ करना चाहते हैं कि प्रूव दैट इफ ax plus b equal to 0 is an identity, then a equals to b equals to 0। ये हम प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। प्रूफ बहुत तरीके से हो सकता है, जो मैंने अभी ऊपर किया कॉन्ट्रडिक्शन, उससे प्रूव हो गया। हमने कहा कि x की कोई भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, उससे प्रूव हो जाएगा। बट चलो हम और थोड़ा फॉर्मल प्रूफ देखते हैं। दिस appears to be a 1 degree polynomial, right? It appears to be, I'm not saying it is, but it appears to be a single degree polynomial, correct? तो अगर ऐसा है, बट एक्चुअली है तो ये आइडेंटिटी है ना। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो तुम्हें इनफाइनाइट रूट्स की जरूरत नहीं है। इट अपीयर्स टू बी अ 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तुम ऐसा करो कि लेट अल्फा बीटा बी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। सर इनसे ग्रेटर आ जाएंगे रूट्स तो प्रूव हो सकता है ना। यस, वही हमने अज्यूम किया ना, और मैंने इसलिए 0 1 में ही रखा। तुम्हें और फॉर्मल प्रूफ दिखा रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी है, ये इक्वेशन नहीं है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि हाँ भाई इसकी जो है 2 रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ऐसा मान लिया मैंने कि अल्फा, आपने 2 रूट्स क्यों अज्यूम किया? क्योंकि ये आइडेंटिटी है, इनसे बड़ा होगा तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इट इज एन आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी है तो 2 क्या, मैं तो 10 रूट या इनफाइनाइट रूट से अज्यूम कर सकता हूँ। मैंने तो 2 ही की है, ये तो मनाओगे मैंने 2 ही की है, और 2 से ही मेरा काम चल जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट अपीयर्स टू बी अ 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो या तो ये आइडेंटिटी है, या फिर ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, या तो इसकी इनफाइनाइट रूट्स हैं, या फिर इसकी एग्जैक्टली एक रूट है, और उसीलिए मैंने इसकी 2 रूट्स अज्यूम कर ली। क्योंकि अगर एक से ज्यादा हुई तो उसी मोमेंट पे ये आइडेंटिटी होगी। अब देखो, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट? व्हाट आर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन? रूट्स आर वैल्यूज व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो अल्फा को हमने यहाँ डाल दिया, और ये हो गया a अल्फा प्लस b इक्वल्स टू 0। बीटा को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, a बीटा प्लस b इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन। और इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करने की कोशिश की। वी आर सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस फॉर a एंड b। और सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों इक्वेशंस को। a अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा? Alpha minus beta can be anything but not 0. Why? Because alpha and beta are 2 distinct roots of this equation. Distinct है ये। तो alpha minus beta 0 नहीं हो सकता। अगर alpha minus beta 0 नहीं हो सकता, but a into alpha minus beta 0 है, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि a should be equal to 0। और अगर तुमने इस a को 0 रख दिया तुमने फर्स्ट इक्वेशन में, this will imply b equal to 0, right? So it is sufficient to take 2 distinct roots in case of an equation which appears to be a 1 degree polynomial but actually is an identity. एक रूट ही तुम एक्स्ट्रा ले लोगे, ये कर सकते हैं इधर तो कर ना, एंड फिर हाँ। a को उधर ले लिया हमने, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 एंड बीटा उधर ले लिया, तो अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया। तो हमने जो अज्यूम किया था कि 2 रूट
कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। मतलब ये आइडेंटिटी तुम ए को वहां नहीं ले सकते हो ना, बिकॉज ए एक्चुअली 0 है। तो ए को वहां डिवाइड तुम तभी कर सकते हो जब तुम ये अज्यूम करोगे कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। तुम ए से डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट डिवाइड बाय ए, है ना। तो ये देखो एक फॉर्मल प्रूफ हो गया। इसी तरीके से तुम क्वाड्रेटिकली प्रूफ कर सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर एक आइडेंटिटी है तो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। प्रूफ करने के लिए अज्यूम अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स अज्यूम कर लो। अगर क्वाड्रेटिक की 2 से ज्यादा रूट्स हुई, इनफाइनाइट छोड़ दो, 2 से ज्यादा रूट्स हुई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो वो आइडेंटिटी बन गई, उसी मूवमेंट पे वो आइडेंटिटी बन गई। दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो यही डिफरेंस है आइडेंटिटी और इक्वेशन का। अब इतना डिस्कशन करने का मतलब ये तुम्हारा डिस्कशन जो पूरा हुआ वो फ्रूटफुल तभी रहेगा जब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो आई थिंक 10-15 इयर्स बैक एआई ट्रिपल ई का एग्जाम होता था, जैसा अभी जेई मेन होता है वैसे ही ट्रिपल ई का एग्जाम था। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। करेक्ट। तो अभी जो तुम एनआईटीज बोलते हो उनको पहले आरईसीज बोलते थे, और वो सारे आरईसीज कनेक्टेड थे इस एग्जाम से। तो वो हमारे टाइम में होता था, ये आई थिंक 2013 में दिन तक हुआ, उसके बाद ये जेई मेन आ गया। तो अच्छा 2013 में ही आया जेई मेन? 13 में आया था। हाँ 13 में ही आया, 13 में फर्स्ट टाइम आया। तो क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो नहीं है बट सिमिलर क्वेश्चन है। सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, this equals to 0 is an identity in X, ये दिया हुआ है। then find P। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। वन प्लस माइनस 1 प्लस I'm 1। waiting. Your answer is correct. 1 yes 1 आया। 1 P equals to 1। सर किसी ने बीच माइनस में 1 भी आ सकता है ना सर? क्यों भाई? नहीं, फिर लास्ट टर्म square माइनस -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर। लास्ट टर्म -2 हो जाएगी। अच्छा हाँ ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था? देखो अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई इक्वेशन, नाउ इट अपीयर्स टू बी अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, इट अपीयर्स टू बी अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, बट एक्चुअली दिया हुआ है नहीं भाई, ये एक आइडेंटिटी है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो फिर इट शुड सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ बीइंग एन आइडेंटिटी, व्हिच इज all coefficients of this polynomial equation must be 0. p square minus 1 0 होना चाहिए, p square minus 3p plus 2 0 होना चाहिए, and simultaneously p minus 1 भी 0 होना चाहिए. So not only p square minus 1 is 0, simultaneously p square minus 3p plus 2 भी 0 होना चाहिए, और उसके साथ साथ p minus 1 भी 0 होना चाहिए। हमने भी पढ़ा ना, देखो यहाँ देखो हमने लिखा है कि ये देखो all coefficients are zeros। तो जितने भी coefficients हैं यहाँ पर, x square coefficient, x का coefficient और जो constant टर्म है वो सब 0 होने चाहिए simultaneously। अब देखो p square minus 1 0 हुआ तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा p equals to plus minus 1। तूने plus minus 1 बोल दिया, बट plus minus 1 तुम तब बोलते जब तुम्हें plus minus 1 तीनों में मिल रहा होता। जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 1 और 2। सभी लोग इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हम इसको सॉल्व करेंगे तो p इक्वल्स टू 1 ही मिलने वाला है। सो नॉट ओनली दिस इज 0 बट ऑल 3 मस्ट बी 0। सारे 0 होने चाहिए, और सारे 0 होंगे तो फिर हमारा एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, और वो सोल्यूशन पॉसिबल तभी होगा जब ये कॉमन सोल्यूशन आएगा। देखो p इक्वल्स टू 1, p इक्वल्स टू 1, एंड इनफैक्ट यहाँ पर भी p इक्वल्स टू 1 और -1 है तो p इक्वल्स टू 1। So a common solution will be your final answer. That's why p equals to 1 is correct. p equals to 2 is not correct because 2 पर केवल ये 0 होता है, ये दोनों 0 नहीं होते हैं। p equals to -1 is not correct because p equals to -1 पर केवल first coefficient 0 होता है, second और third नहीं होते हैं। So are you getting it? And you have just solved an AI or main level problem. देखो इतना ही difference होता है बस। Theory इतने ढंग से पढ़ लो, क्वेश्चंस आराम सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चंस पे बड़ी बात नहीं होती। अगर तुम्हें इतने इजी भी आते हैं भाई, इतने इजी भी आते हैं। सर इतने इजी? सर हाँ सर
सर बट इतने अब इजी आते हैं बट अब आना बहुत बंद हो डाउट गया है। क्या? ऐसा है? सर अब नहीं आते होंगे। वही अब नहीं आता होंगे। भाई आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 4-5 तो बहुत इजी होते ही हैं यार, देखते हुए सर आते हैं। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि कभी मेन में हाँ हार्ड हाँ आता है और एडवांस में एक आध इजी आ जाता है। ऐसा बहुत बहुत कम होता है मुश्किल है, बट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेन में कभी कभी हाँ एक दो क्वेश्चन इतने लेंथी आ जाते हैं, और एडवांस में कभी कभी वो ट्रिकी होते हैं लेकिन बहुत शॉर्ट होते हैं, ऐसा हो सकता है। बट वो कंपैरिजन नहीं यार, मेन और एडवांस की कंपैरिजन नहीं है। एनीवेज, इसी क्वेश्चन का चलो अब एक सेकंड पार्ट करते हैं, देखते हैं ये कर पाते हो क्या। सेकंड पार्ट में चलो, सेकंड पार्ट मतलब मैं सेम इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इंटू एक्स plus p minus 1 equal to 0 is an identity in P. Find x. अपने आप सोचो, मैं कुछ नहीं बता रहा इसके बारे में, क्योंकि वो उतना ही इजी है जितना पिछला वाला था। दोनों में डिफरेंस क्या है? पिछली बार क्वेश्चन में लिखा हुआ था इट इज एन आइडेंटिटी इन x, ऐसा लिखा हुआ था। फाइंड p, सर एक्स इस पर जीरो क्या है है? क्या? सर x 0 है। जीरो आएगा ना सर जीरो। सर? जीरो पहले ही स्ट्राइक में मेरे को समझ जीरो आ जाएगा सर। हाँ सर एक सेकंड के अंदर कैलकुलेट बोल करने दे लगा जीरो। तो फिर हो गया 0। अगर एक सेकंड में तुम्हारा x इक्वल टू 0 आ जाएगा तो दूसरे सेकंड में तुम्हारा मार्क्स -1 हो जाएगा। बट लास्ट टर्म कांस्टेंट है। वही अगर तुम x को आइडेंटिटी इन पी है। आइडेंटिटी इन p है, अगर तुम x को 0 रखोगे तो p इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी इन p का मतलब क्या? एवरी वैल्यू ऑफ p मस्ट सेटिस्फाई। बट आंसर क्या आ रहा है? p इक्वल्स टू 1, ओनली वन सोल्यूशन। तो ये तो फिर एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया ना, अगर एक रूट आ रही है तो। x इक्वल टू 0 इज रॉन्ग। और सोचो, 1 माइनस p। आंसर कांस्टेंट है अगर है तो, मतलब आंसर p की टर्म्स तो ही ना होगा। देखो अभी तुम लोग कह रहे थे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। मैंने इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट मारा और तुम बिल्कुल ही फंस चुके हो। ऐसा कैसे हो सकता है यार? तुम यहाँ पे ऐसा क्या नहीं कर रहे हो जो तुमने यहाँ पे किया था? थिंक इन दैट डायरेक्शन, आंसर आएगा। -1। गलत है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन तुमने सॉल्व कैसे किया? जाएगा 1 लास्ट क्वेश्चन तुमने सॉल्व कैसे किया, मुझे पहले बताओ। सर एंड में हम फिर से लोग को into x raised to 0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? फिर वो करके 1 आ जाएगा। सर सबको खोलना पड़ेगा। मुझे बस इतना बताओ कि तुमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया। बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग, जिस तरह अभी रिएक्शंस आए थे कि ये इतना इजी है, 1 सेकंड में आंसर आ गया, इतना इजी क्वेश्चन आप पूछा जाता है, और अब जो है कोई नहीं बता पा रहा है, जबकि दोनों में एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं मतलब दोनों सेम मेथड से सॉल्व होने वाला है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम सॉल्व करो, मैं बताऊं नहीं। पहले क्वेश्चन को तुमने सॉल्व कैसे किया मुझे बताओ क्या किया तुमने कौन सा फैक्ट यूज किया, बोलना। ये मैंने क्या किया? सर अगर वो जीरो से आइडेंटिटी जीरो होना है चाहिए। तो 0 होगा। अगर वो आइडेंटिटी इन p है, या सॉरी आइडेंटिटी इन x है, तो x की जो भी टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट 0 होंगे। ये फैक्ट हमने यूज किया, करेक्ट? यही फैक्ट यूज किया ना हमने सारे कोएफिशिएंट 0 किया और जो कॉमन आंसर आया वो हमने लिख दिया। क्या तुम वो काम यहां कर रहे हो? सर एक मिनट क्या तुम p की जो टर्म्स हैं उनके सारे कोएफिशिएंट्स को 0 कर रहे हो? और बिना वो किए इतने आराम से आंसर कैसे बता रहे हो यार? हाँ सर 1 है आंसर। तुक्केबाजी बंद कर दो यार। नहीं अब मुझे सीरियस समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ऐसा इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है जो तुम्हें सेकंड पार्ट में समझ में नहीं आ रहा है। कैन यू कलेक्ट कोएफिशिएंट्स ऑफ p, कोएफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म, इनको कलेक्ट कर सकते हो? ये देखो भागा। खैर भगोड़ों का कुछ नहीं किया जा सकता।
जैसे ही कुछ समझना है भाग जाओ, डिस्कस मत करो। बहुत ही सिंपल सी बात, मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें खुद स्ट्राइक करेगा। पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वो क्या सॉल्व किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था इट इज एन आइडेंटिटी इन एक्स। तो अगर ये एक्स की आइडेंटिटी है तो जो भी एक्स की टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट 0 करो। एक्स की टर्म्स मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म, तो इसके कोएफिशिएंट्स को 0 कर दिया हमने। यहां पर बोला गया है कि इट इज एन आइडेंटिटी इन पी, तो पी की पहले इक्वेशन तो बनाओ, पी की इक्वेशन तो फॉर्म करो। हाँ, इसको ओपन करो, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस 3p एक्स प्लस 2x प्लस p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और इसके बाद सर नॉट डिफाइंड भी आ रहा है इसमें तो, कांस्टेंट। इसके बाद तुम पी स्क्वायर को देखो, पी स्क्वायर यहां पर है, तो इफ यू टेक पी स्क्वायर कॉमन, यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इफ यू टेक पी, देखो पी वाली टर्म्स कहां पर है, ये है 3px और यहाँ पे है p, तो इफ यू टेक p कॉमन, क्या कोएफिशिएंट आएगा इसका 1 माइनस 3x। सर 1/3। एंड इफ यू टेक the constant term, what is constant term? Constant term मतलब term independent of p, that term is 2x minus x square, ये term 2x और x square। अब तुम्हारी p की इक्वेशन आई है भाई, और एक बार तुम्हें इक्वेशन मिली है उसके बाद तुम सोच सकते हो, उसके बाद दिमाग लगा सकते हो कि हाँ भाई अब अगर ये आइडेंटिटी है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इफ इट इज एन आइडेंटिटी इन p, coefficient of -1 भी होगा ना, coefficient of each term of p should be equal to 0। सब गलत बोल रहे हो यार, 2x minus सब x गलत square बोल रहे minus हो, 1। सब कुछ गलत बोल रहे हो, and this is so irritating। सर हम आंसर नहीं बोल रहे। सब कुछ आने के बाद तुम लोग गलत बोल रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा है। फर्स्ट पार्ट इतना इजी था कि मतलब ये कैसे आ गया, और सेकंड पार्ट इतना डिफिकल्ट है कि किसी को नहीं आ रहा है। सर आपने इक्वेशन लास्ट में गलत लिखा है। बोल रहे सर, क्या गलत लिखा है -1 भी आएगा, 2x minus x square minus 1 आएगा। 2x माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा -1 भी है, चलो ठीक है -1 डाल दो उसमें, डाल दिया भैया। अब क्या करेंगे, हैं 1/3। 1/3 आंसर आ गया। वन बाय थ्री आंसर आ गया। अबे तुमने पिछले पार्ट में क्या किया था यार, सर फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व किया तो था, 0 डाला था, बट तो इसमें कोएफिशिएंट नहीं है क्या, यहाँ पर पी स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है। सर अलग अलग आ रहा है सर, सब में अलग अलग आ रहा है, वैल्यूज अलग अलग है। तो नो सोल्यूशन नाम की भी चीज होती है। सर बोला तो था मैंने। अरे यार सर बोला था मैंने। कब बोला यार, मैंने तो नहीं सर, सुना। तब से उसी में कंफ्यूज सर बोला था एक बार सुना किसी भी ने नहीं तो। सर। मुझे 1/3 सुनने में आ रहा है, मुझे -1, मुझे 0 सुनने में आ रहा है, मुझे एक बार भी नो सोल्यूशन सुनने में नहीं आया। 2x minus x square minus 1 equal to 0 and x minus 1 whole square x equals to 1। इसका मतलब ये नहीं है कि 1/3 एक आंसर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 एक आंसर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि -1 एक आंसर हो गया। जैसा हमने पिछले पार्ट में किया, जैसा हमने लास्ट पार्ट में किया, लास्ट पार्ट में हमने क्या किया, कॉमन सोल्यूशन। इज देयर अ कॉमन आंसर, देयर इज नो कॉमन आंसर, बिकॉज यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 1/3 आ रहा है, यहाँ -1 और 0 आ रहा है, देयर इज नो कॉमन आंसर, सो आंसर इज नो वैल्यू ऑफ x। x की किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा नहीं होगा, नो वैल्यू ऑफ x। ये p की आइडेंटिटी कभी नहीं बन सकती है, नॉट पॉसिबल। अगर बोला था भाई तो सॉरी, मैंने सुना नहीं, लेकिन जिस तरीके से तुम स्टार्ट कर रहे थे, जिस तरीके से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तुक्के मार के,
कि x की वैल्यू 0 रख देंगे 1 रख देंगे तो डायरेक्टली हो गया, ये मत करो ना यार। जब तुम्हें एक थियरी आती है उस थियरी का यूज करो, जब तुम्हें वो थियरी से आंसर ना आए उसके बाद तुम्हारे जो भी मेथड्स हैं तुम यूज करो यार। तो अपने तुक्के मारो, तुम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाने की कोशिश करो। अब तुमने बोला कि मान लो तुम्हें लगता है कि जो तुक्का मार के आंसर निकालते हो, तुमने x को 0 बोल दिया। जब तुम x को 0 बोलते हो तो क्या होता है, ये टर्म 0 बन जाती है, ये टर्म 0 बन जाती है, बट वहां से p की वैल्यू 1 आ जाती है, p इक्वल्स टू 1। अगर हम बोल रहे हैं कि ये आइडेंटिटी है p में, तो p की केवल एक वैल्यू थोड़ी आनी चाहिए। इस इक्वेशन से p के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने चाहिए ना, तभी तो ये आइडेंटिटी है। और अगर केवल p इक्वल्स टू 1 आ रहा है, केवल एक रूट आ रही है, केवल एक वैल्यू आ रही है, तो उसका मतलब ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, आइडेंटिटी कैसे बन सकती है? तो अपने आप तुम्हें रियलाइज होगा तुम गलत बोल रहे हो। तो इसलिए कहते हैं ना, फ्लूक मारने के या तुक्के मारने के लिए भी उस लेवल का फिर हमको डेवलप करना पड़ेगा अपना जो ब्रेन है, अदरवाइज हम तुक्के भी नहीं मार पाएंगे। तुक्का मारना इतना आसान नहीं होता है। चलो तीसरा क्वेश्चन ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन जो सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है। लेट्स से वी हैव x minus a into x minus b upon c minus a into c minus b plus x minus b into x minus c upon a minus b into a minus c plus x minus c into x minus a upon a minus b a minus c हो गया a b, हाँ चलो ठीक है, x minus c x minus a upon b minus c into b minus a equals to 1, where a b c are distinct, is an identity in x. Prove that. Prove that this equation, ये जो तुम्हें इक्वेशन दिखाई दे रही है इस वक्त इतनी बड़ी सी, प्रूव करना है कि ये एक आइडेंटिटी है। किसकी? केवल आइडेंटिटी बोलने से काम नहीं चलेगा। किसकी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी x की आइडेंटिटी है, ऐसा प्रूव करना है। ऐसा दिया हुआ है कि एबीसी डिस्टिंक्ट है, क्योंकि एबीसी डिस्टिंक्ट नहीं होते तो फिर डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर 0 हो जाता। तो प्रूव करना है कि ये x की एक आइडेंटिटी है। इसके बाद तुम सॉल्व करना स्टार्ट करो, मुझे बताओ कि किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, क्या करोगे, कैसे प्रूव करोगे? सर ओपन करने से होगा। पहले सर ब्रैकेट ओपन करके x स्क्वायर कॉमन। तो तुम्हारा तरीका ये है कि तुम सबको ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और फिर जैसा हमने पिछली बार किया था, हमने सबको ओपन किया और p स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाला, p का निकाला, वैसे ही तुम यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालोगे, x का निकालोगे और कांस्टेंट हम निकालोगे और तीनों को अलग अलग 0 प्रूव करोगे। राइट, ये करोगे ना? हाँ सर। कितना टाइम लगेगा उसमें? नहीं सर कुछ तो सर रहेगा सर, बहुत टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा। नहीं, ये तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुमने कुछ गलत नहीं कहा है। सर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। करेक्ट, ये मेथड तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन जो है, जो एक्सप्रेशन से डिनोमिनेटर में भी है, एलसीएम लेके सॉल्व करना बहुत लेंथी होगा। और तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा दूं कि केवल जैसे मान लो तुमने अगर स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को तुम्हारे तरीके से, तो केवल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तुम जब कैलकुलेट करोगे, मैं तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी दिखा दूं, ये आएगी 1 अपॉन c माइनस a इंटू c माइनस b प्लस 1 अपॉन a माइनस b इंटू a माइनस c प्लस 1 अपॉन b माइनस c इंटू b माइनस a। ठीक है, तो ये तीनों चीजें ऐड करोगे। इसको ऐड करने के लिए तुम्हें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना आई थिंक सभी को आता होगा। a माइनस बी, देखो a माइनस बी यहाँ भी है, ये भी a माइनस बी लिखा हुआ है, b माइनस a इज माइनस ऑफ a माइनस बी। फिर एक टर्म आएगी b माइनस सी, देखो b माइनस सी यहाँ पर है तो b माइनस सी यहाँ भी है। c माइनस b इज सेम एज b माइनस सी इफ यू टेक माइनस कॉमन, एंड अनदर थिंग कैन बी c माइनस a, क्योंकि a माइनस सी इज सेम एज c माइनस a, है ना? तो तीनों टर्म्स का, तीनों जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a अज्यूम किया जा सकता है। अब बताओ न्यूमरेटर में क्या आएगा?
तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो सब कट जाएगा। कटना ही चाहिए, 0 होना चाहिए। तो c माइनस बी यहाँ पे देखो ऑलरेडी है, c माइनस बी, क्योंकि b माइनस सी है तो माइनस लगा दिया मैंने एक, और c माइनस ए भी है तो क्या बचा, माइनस ऑफ a माइनस बी। अब ये एलसीएम लेना और ये मल्टीप्लाई और ऐड करना सबको आता होगा, बट स्टिल मैं दिखा दे रहा हूँ। माइनस ऑफ यहाँ क्या बचेगा, b माइनस सी, और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ c माइनस ए। और देखो जब तुम इसको ओपन करोगे ब्रैकेट्स को या माइनस कॉमन लो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी एंड प्लस c माइनस ए डिवाइडेड बाय a माइनस b, b माइनस c, c माइनस ए, a कैंसिल, b भी कैंसिल, c से कैंसिल, एंड आंसर इज 0। तो हमने अभी जस्ट इतना प्रूफ किया कि ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अभी ये सफिशिएंट नहीं है। अब अगले स्टेप में हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x भी 0 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x जो है लेंथी होगा। Then we have to prove that constant term is also 0. Constant term is 0, और ये तीनों करने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट यू कैन सी कि ये इतना, चलो ये डिफिकल्ट तो नहीं है बट लेंथी है, राइट। सो बताओ दूसरा मेथड क्या हो सकता है, बिकॉज तो न्यूमरेटर में 1 कैसे है, लाइक कोएफिशिएंट ऑफ x square, when you will multiply these two terms, when you will multiply these two terms x minus a and x minus b, what will be their multiplication, x square minus a plus b x plus ab, right? And upon जो भी डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। So tell me what is the coefficient of x square? x square से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पर तो 1 है, और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो तो 1 अपॉन c माइनस है, c माइनस b, यही तो हुआ ना, तो वही लिखा हुआ मैंने, 1 अपॉन c माइनस है, c माइनस b। What is the coefficient? भाई अगर मैंने लिखा x square plus x plus 1 by 5, what is the coefficient of x square? Tell me, what is the coefficient of x square? 1 by 5। 1 by 5। So जो डिनोमिनेटर है वो भी तो तुम लोगे ना कोएफिशिएंट में। x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 by d तो होगा। सो 1 अपॉन c माइनस है, c माइनस b, ये लिखा मैंने, अभी समझा? हेलो यस सर, हेलो, यस सर, Okay. यस सर, यस सर। यस सर। अब बताओ, अब इस मेथड से तो बहुत लेंदी हो गया, सर अगर 3 रूट प्रूफ करें तो, जो हमने पहले किया था, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? देखो वो भी क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, और उस डायरेक्शन में सभी लोग सोचो, क्योंकि ये एक्चुअली बेटर मेथड है, और एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए तो बेस्ट है। दिस अपीयर्स टू बी अ क्वाड्रेटिक, राइट? Because if you will multiply these two linear expressions, x into x, you cannot get degree of this equation more than 2. x into x तो x square ही हो सकता है ना, यहाँ भी x into x x square हो सकता है, यहाँ भी x into x x square हो सकता है। तो it appears to be degree 2. I'm not saying it is degree 2, because हो सकता है कि उसका कोएफिशिएंट 0 हो, जो कि हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x square 0 आ गया, बट वो कैलकुलेशन के बाद आया। अब ये appears to be degree 2 है, और हमको इसको आइडेंटिटी प्रूफ करना है। एक आइडेंटिटी के सारे कोएफिशिएंट 0 होते हैं, बात सही है, बट उस मेथड से बहुत लेंदी हो गया। देन वी हैव अनदर इंफॉर्मेशन कि एक आइडेंटिटी की इनफाइनाइट रूट्स होती हैं, या फिर इतना शो करना काफी है कि अगर ये डिग्री 2 अपीयर हो रहा है, अगर ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल लग रहा है हमको, इसकी रूट्स मोर देन 2 अगर प्रूफ कर दें, 3 भी प्रूफ कर दो, दिखा दो कि 3 वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करती हैं, तो भी हमारा काम हो जाएगा। Can you find 3 distinct values of x which will satisfy this equation? If you can show that, you can prove it is an identity. Think. सर आपने लास्ट मिनट क्या बोला, एक बार बता सकते हो क्या? मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने बोला कि अगर तुम ये प्रूफ कर सकते हो, अगर तुम ये प्रूफ कर सकते हो कि इस इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स हैं, बिकॉज ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल दिख रहा है, इट अपीयर्स टू बी अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। इफ यू कैन प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, 2 से ज्यादा रूट्स हैं, सर अगर x को a b और c लेंगे और रखते हैं बेटर सोल्यूशन, x को a रखते हैं। चलो मैं एक बार फिर लिखता हूँ, x माइनस, वेट,
x minus a x minus b upon c minus a c minus b, x minus b x minus c upon a minus b a minus c, और x minus c into x minus a upon b minus c into b minus a equals to 1। हाँ भाई, तो यहां पे तुम कह रहे हो, अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि x को a रखते हैं, लेट x इक्वल टू a। सभी लोग x को यहां पर a रखो और बताओ क्या x इक्वल्स टू a सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। रख के देखो, ये टर्म 0 बन जाएगी, हो रहा है 1 हो रहा है। ये टर्म 0 हो जाएगी हाँ और ये सर, टर्म हाँ। 0 हो जाएगी। जीरो और हो अगर रहा तुमने यहाँ पे a माइनस बी a माइनस सी अपॉन a माइनस बी a माइनस सी 1 इक्वल टू 1 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या x इक्वल्स टू b सेटिस्फाई कर रहा है? b रख के देखो, ये फिर 0 हो गया। हाँ सर। हाँ और सर सेकंड टर्म करेगा। 0 हो सर, गई। हाँ। b माइनस सी b माइनस a b माइनस सी, ये भी देखो 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। व्हाट इफ x इक्वल्स टू c, x इक्वल टू c रख के देखो, सेकंड थर्ड टर्म 0 हो गई, c माइनस b देखो ये भी 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो तुमने अभी क्या शो कर दिया, सो x इक्वल्स टू a b c are 3 distinct roots of this equation which appears to be a quadratic. What does this mean? It appears to be a quadratic second degree polynomial, but इसकी 3 roots हैं, 3 distinct roots. What does this mean? क्या मतलब हुआ इसका? It is an identity. It is an identity, है ना? तो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन में दूसरा मेथड भी है, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें और उसको 0 प्रूव करें या फिर चेक करें। इससे बेटर मेथड भी हो सकता है। इफ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ रूट्स अगर एक्सीड करते हैं, इफ नंबर ऑफ रूट्स एक्सीड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देन इट शुड बी एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये था इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। और अभी तक क्वाड्रेटिक एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ है ना, क्वाड्रेटिक स्टार्ट नहीं हुआ है, क्वाड्रेटिक हम आगे स्टार्ट करेंगे। चलो भी आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ते हैं। ओके, अभी नहीं, इस पर अभी फिलहाल कोई होमवर्क नहीं दूंगा मैं, क्योंकि अभी तो तुम्हें, अब तुम जरा रिवाइज करो 10th के जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और जो सम ऑफ रूट्स ऑर्डर रूट्स वाले फॉर्मूले हैं। सर पता उसको है, मतलब सीबीएसई का थोड़ा रीड करना पड़ेगा उसके लिए। उसको रीड करो, क्योंकि तुम्हें मैंने देखा था लास्ट लेक्चर में कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी याद नहीं था। हाँ कई सर, लोगों वो 10th आईसीएसई में कुछ तो नहीं था सर। वो पोर्शन में नहीं था, पोर्शन में ही नहीं था। कोई बात नहीं, अब सब कुछ पोर्शन में है, अब सब कुछ पोर्शन में है ना। तो इसको जो है ज़ील एकेडमी कोई है क्या भाई यहाँ पर? कृतिका मैम, हेलो। हेलो सर, हमको होस्ट बना दो। तुम होस्ट बना दे, क्या करोगे तुम होस्ट बन के भाई? यस सर। मैम ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स कम हुए हैं उसको तुरंत लिस्ट निकालो और उसको ग्रुप पे डालो, और उनके पेरेंट्स से पूछो कि क्या चक्कर है, प्रॉब्लम क्या है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो रिफंड लेके घर जाए तुरंत। जी ठीक है, इनको तुरंत बोलो कि यहाँ से तुरंत निकल जाए, यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके सर। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे तुम? सर मॉड्यूल भेज दीजिएगा। तो आज मॉड्यूल मैं नोट जो है इसके भेज देता हूँ। सर भेज दो सर, लेक्चर का वो भी भेज दो। क्या भेज दो सर? इसका होमवर्क क्या रहेगा? सर बुकलेट भेज दो सर। होमवर्क पीडीएफ भेज दो, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा सर। हॉलैंड नाइट का है क्या? हॉलैंड नाइट की पीडीएफ भेजता हूँ। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना शुरू करो। फिर कह रहा हूँ 10th का रिवाइज करो, कुछ लोगों के बेसिक्स पुअर हैं, अभी हालत सही नहीं है, तो उसको ठीक करो। और जो नहीं पढ़ा है 10th में क्वाड्रेटिक में, उसको वापस पढ़ लो, टाइम है अभी। नेक्स्ट लेक्चर के बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना ही है आज।